ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਨ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਚੈਪਟਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ X Y Z ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ X Y Z P Q, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 2 3 4 5 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਵੈਸੀ 3x + 2 ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ x ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, 2 ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੈਤਾ 3, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ x ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3x ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ x ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। 3 ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਕੀ ਹੈ, x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਮਸ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ, ਮੋਰ, ਅਤੇ ਨੋਮੀਅਲਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਮਸ। ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣੀ ਆ। ਪੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੀ, ਮੋਰ, ਅਤੇ ਟਰਮਸ, ਜੋ ਨੋਮੀਅਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਗਰੀ। ਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ 3x, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਤਾ 3x + y ਐਡ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਤਾ a², ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਤਾ 3b, ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਮੈंने 3x + a² ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ a ਅਲੱਗ ਹੈ b ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ, ਜਿਵੇਂ a² + b², ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਆਹ ਟਰਮ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੇ, 2 ਟਰਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਗਰੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਬਾਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਟਰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2 ਟਰਮ,
फिर मैं लिखती है 3 टर्म, फिर मैं लिखती हूँ 4 टर्म। देखो कहने का की मतलब है 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। जिमें कि एग्जाम्पल लेके चलते आप, मान लो मैंने एक 6 लिख लिया, ठीक है, पहली वैल्यू मैंने की लिख ली 6 लिख ली। इस तो बाद मैंने लिख लिया मान लो 3x लिख लिया। इस तो बाद मैंने लिख लिया 5a² b²। देखो ये एक स्टेटमेंट है 6, सिर्फ 6 लिखा मैं तो 1 टर्म है, 3x लिखा है तो 1 टर्म है, -5a² b लिखा तो कितनी है 1 टर्म है। पर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो 6 ਵਿੱਚ मैंने की ऐड करता 3x ऐड करता, ठीक है। अगे इस 3 ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने कोई होर ऐड करता, मान लो 9 ऐड करता, ठीक है, समझ गए ना। मान लो y ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने 3f ऐड करता, कुछ भी बढ़ाई चलो, ठीक है। होर देख लो जिवें मैंने लिखता कुछ भी लिख लो, -5a² b ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने 2z ऐड करता, ठीक है। हुण आपां ने टर्म की काउंटिंग करनी है, ये एक टर्म एक टर्म एक, ये कितनी आ गई 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि कितनी कितनी आ रही ने 2 टर्म्स आ रही हैं इन्हां विच। अगे 3 जाना तो होर ऐड करी चलो, 3x 6 प्लस मैंने की ऐड करता, ये मान लो 3f ऐड करता। टर्म्स ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਵਧਾਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ ਮੈंने ਜਿਵੇਂ 3x² + 2x + 5, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ 1 ਟਰਮ 2 ਟਰਮ 3 ਟਰਮ, ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 3 ਟਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ y² + 2y + 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਗਏ 0 ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ w/2 + 5x + 3y, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਰਮਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इट मीनस जिहदे विच एक है वो 1 टर्म है, जिहदे विच 2 आ गई तो 2 टर्म है, जिहदे विच 3 आ गई तो कितनियां होणगीਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 टर्म्स होणगीਆਂ। तो यह तुहानूं याद रखना, ठीक है। हुण जरूरी नहीं भी देखो ये वेरीएबल एक चल रहा है, तुसीं कहोगे कि ये x ही चल रहा है वेरीएबल्स, ठीक है, ये y चल रहा है। ਆਪਾਂ ਤਾਂ टर्म्स की काउंटिंग करने, हाले आप सेम वेरीएबल के बारे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जरूर सेम वेरीएबल भी हो सकता है, दूजियां भी ऐड कर सकते आप, क्योंकि आप इन्हां दी काउंटिंग कर रहे हैं भी कितनियां टर्मां ने इहदे विच। 4 टर्म, हुण 4 आ जाना, जिवें मैंने लिखता 3x³ 2x² + 3x + 5, ये वाली लिखती, ये 4 टर्म की आ गई अपने को इक्वेशन, ठीक है। ये कितने टर्म वाली आ गई 4 टर्म वाली आ गई। होर एग्जाम्पल ले लो कोई भी, जिवें 4y 5z 6f + 3 1 2 3 4, इदां दी आ गई। हुण देखो कहने का की मतलब है भी जिहदे विच 1 टर्म है उहनूं की बोलते हैं आपां नाम लिख लेने इन्हां दे, ठीक है। टर्म थोड़ा जिहा हटा के इहनूं बोलते हैं मोनो, ठीक है, मोनोमियल। इहनूं बोलते हैं बाइनोमियल, सो 3 वालियां उहनूं ट्राइनोमियल, ठीक है। अते 4 वालियां की बोलते हैं पॉलीनोमियल, यानी कि 3 तो जे बढ़ जाण तां आपां उहनूं की नाम दिंदे आ पॉलीनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यह याद रखना टर्म वाइज पॉलीनोमियल, जिहदे विच 1 टर्म है तो 1 2 आ, जिहदे विच 2 आ गई, कोई भी अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं सेम वेरीएबल ही चले। 3 वालियां 4 वालियां ये सारियां की ने पॉलीनोमियल्स ने, तो 3 तो ज़्यादा हो जाए तो आप की कह दें भी ये पॉलीनोमियल हो गया। पॉली का मतलब ज़्यादा, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, टर्म ये बहुत ज़्यादा ने, तो यह टर्म वाइज सीगा, ठीक है। तो हुण आपां की करते हैं, आप डिग्री वाइज देखते हैं, हुण डिग्री वाइज मेजर करते हैं पॉलीनोमियल नूं, ठीक है। तो आप हुण डिग्री वाइज पढ़ते हैं। पहले तो डिग्री पता होनी चाहिए तुहानूं की हुंदी है। देखो कोई भी इक्वेशन लिखती मैंने वैसे ही लिखती एक, जिवें 3x² + 2x + 9, आ एक पॉलीनोमियल है कि ना पॉलीनोमियल है। तो डिग्री इहदी की हुंदी है, एक इही जी इक्वेशन जिहदे विच उहदे वेरीएबल की पावर आपां हाईएस्ट लभ लईए, वो हुंदी है अपनी डिग्री। जिवें इस विच देखिए इहदी पावर कितनी है
x ਦੀ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ x ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ 3x² + 2x + 9, ਉਰੇ x ਦੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ। ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0, x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਤੋਂ ਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਈਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। देखो पहला आप पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, पहला आप वो पढ़ांगे जिहदे विच कॉन्स्टेंट अपने को डिग्री पढ़नी, आप डिग्री विच की होगा कॉन्स्टेंट होणगे। ठीक है, फिर इस दे विच आ जांदे लीनियर। ठीक है, इस तो बाद तीजी आ जांदे क्यूबिक। ठीक है, पहली आ गई कॉन्स्टेंट, फिर लीनियर आ गई, सॉरी क्वाड्रेटिक, दूजी क्वाड्रेटिक, तीसरी आ गई क्यूबिक। ठीक है, ये अपने को 3 टाइप्स होंगे ने इन्हां दी पॉलीनोमियल दी डिग्री दी। कॉन्स्टेंट जिमें कि कोई लिखा मैंने 6 लिखता, ठीक है 7 लिखता, ये की है मेरे को कॉन्स्टेंट है। मैं लिखता -2/3, ये की है एक की है कॉन्स्टेंट नंबर है। कोई भी इक्वेशन लिखी सी जिवें मैंने आ लिखी सी तुहाडे कोले, हुण इक्वेशन मान लो 9 है, तो 9 की है ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये कोई वेरीएबल ही नहीं है, x की पावर 0 सी, x की पावर 0 कितना होंगे 1 होंगे। ठीक है, इत्थे ये वेरीएबल है भी, ये वेरीएबल्स ने। ठीक है, वैसे देखा जाए 3 4 तो 9 ये की है कॉन्स्टेंट ही ने, है ना। पर मैं कि लैता ये तो वेरीएबल नहीं ना है, x की पावर कितनी है 0 है, तो पहली कॉन्स्टेंट टर्म वो लैनी होंगी जिहदे x की पावर की होवे 0 होवे। तो उरे मैं x की पावर 0 लिख सकदा, उरे भी लिख सकदा, उरे भी लिख सकदा। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 कितनी होंगी है 1 होंगी है, तो इट मीनस ये कितना आ गया 6 7, ये कितना आ गया -2/3। तो ये पहले टू कॉन्स्टेंट होंगी है। ठीक है, हुण आपां गल करदे हां लीनियर दी। लीनियर की होंगी है, जिवें मैंने लिखता 6x + 1, मैंने लिखता 2/3x + 9, ये मेरे को लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि x की पावर उरे की है 1 है, x की पावर कितनी है 1, इत्थे x की पावर कितनी सी 0, x की पावर 0 वाली हमेशा कॉन्स्टेंट, x की पावर 1 वाली हमेशा ही लीनियर होंगी है। डैट लीनियर इन 1 वेरीएबल, ये कितनी है 1 वेरीएबल च है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक अपने पढ़ी हुई है जिहदे विच x की पावर कितनी होवे बई 2 होवे। इट मीनस जिमें मैंने लिखा 6x² + 3x + 1, जिमें मैंने लिखा x की स्केयर -7x + 10, ये सारियां क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इस विच हाईएस्ट पावर देखो x की कितनी है, हाईएस्ट पावर देखनी होंगी। हाईएस्ट पावर x की कितनी है 2, फिर x की कितनी होगी 1, फिर कितनी होगी 0, ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। हाईएस्ट पावर x की कितनी है 1, इस तो बाद कितनी आई x की पावर 0, कॉन्स्टेंट x की पावर 0, समझ गए। इस तो बाद क्यूबिक, क्यूबिक केड़ी होंदी है बई, क्यूबिक वो होंदी जिहदे विच हाईएस्ट पावर x की कितनी होगी 3 होगी। जिमें मैंने 6x की 3, 2x की स्क्वेयर, 3x + 9 इदा की इक्वेशन ले ली कोई भी, x की 3 + 2x + 1। जरूरी नहीं कि ऑर्डर कंप्लीट ही होवे, मिस भी हो सकते हैं टर्म्स। मैनू पता है कितने टर्म मिस ने, x की स्केयर मिस है, इस तो बाद बस कल x की स्केयर ही मिस सी इस विच, तां मोरे x की पावर देखो ये इक्वेशन मैं इदा भी लिख सकता सी, x की क्यूब + x की स्क्वेयर नाल की लिख दांदा 0 लिख दांदा + 2x + 1, क्योंकि 0 नूं मैं मल्टीप्लाई करूँगा ऑलवेज 0 ही आऊगा। ठीक है, और मैं 0 लिख सकता सी क्योंकि ये टर्म मिस सी। बट आपां ने तां पॉलीनोमियल की डिग्री की लभनी है जिहदे विच x की पावर हाईएस्ट है, उही उहदी डिग्री होंदी है। इस विच x की पावर हाईएस्ट 3 है, तो इहदी डिग्री कितनी है 3। इस विच x की पावर हाईएस्ट 2 है, तो डिग्री कितनी है 2।
इस विच x की पावर हाईएस्ट 1 है तो डिग्री कितनी है इहदी 1। इस विच x की पावर हाईएस्ट 0 है, 0 का मतलब कॉन्सटेंट। सो आपां की कहांगे जिवें x की पावर 0 है, हाई डिग्री कितनी है इहदी x की पावर 0, x की पावर 0 कितनी हुंदी है 1। तो आपां कह सकते हैं भी ये टर्म की ने सारियां कॉन्सटेंट टर्म्स हुंदियां ने। समझ गए? ऐदा लभणियां ने आपां ने हाईएस्ट पावर। देखो ये तो बिल्कुल कंप्लीट वेरीएबल्स दिते हुए सीगे। कई बार की हुंदा अपने कोले डिफरेंट टाइप दी भी पॉलीनोमियल्स आ जांदे ने, तो थोड़े याद रखना है हाईएस्ट पावर x दी 3 क्यूबिक, हाईएस्ट पावर x स्क्वेयर। सो हमेशा ऑर्डर याद रखियो डिग्री का पॉलीनोमियल का, पहला x दी स्क्वेयर फिर x दी पावर 0 x दी क्यूब। इट मीनस ऐदा ही वेरी करता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट वेरी करता है, ये थोड़े याद रखना है। ठीक है, इस तो बाद कुछ होर जिमें पॉलीनोमियल्स आप लै लेने आ, जिमें कई बार की हुंदा ना सानू डिग्री कढ़न च दिक्कत आ सकती है। वैसे तो आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं, थोड़ा जिहा बेसिक लैवल है। जिमें मैं कहदा भी आप ओकेशन लिखती सुनो, जिमें मैंने लिखता -5a² ठीक है +9, इसकी डिग्री दसनी आपां ने -5a² × 3। हुण इहदी डिग्री किवें लभांगे बई आपां? देखो जो इदां दी ओकेशन होवे तां जिहड़ियां इहदे पावर्स हुंदियां ने इहदियां ऐड कर दिया करो। तो आपां लिखांगे भी 2 + 1 कितना आ गया 3, तो आपां इहदी डिग्री कितनी कहांगे 3 कहांगे। समझ गए? जो भी इदां दे वेरी अलग अलग आ जाए ना, जिवें a² आ गया एक पासे b आ गया, तो ये पावरां प्लस कर दिया करो। 2 + 1 कितना हो जाऊगा 3 हो जाऊगा। तो इदा आप कोई भी डिग्री है जी वो पावर्स ने जी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखियो जो किसी मिक्स ओकेशन आ जाते तो डिग्री हमेशा प्लस करके निकलती है उन्होंने पावर्स में। ठीक है, इन्हों तो कोई लोड़ नहीं होंगी। जिमें इदा लिखता ये तो पता भी x की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है, तो यदि डिग्री कितनी होगी 2। बट जो इदा का आ जाता कई बार तो वो पावर ने जी दोनों प्लस कर दो तो आप पता चल जाता वह पॉलीनोमियल की डिग्री पता चल जाती है। तो आपने बेसिकली की पढ़िया पॉलीनोमियल पढ़िया, जो भी x y z विच ने पॉलीनोमियल्स पढ़िया ने। ठीक है, लीनियर पढ़ ली, क्यूबिक पढ़ ली, ठीक है, कॉन्सटेंट पढ़ ली। उधरों आप टर्म्स भी पढ़ते हैं भी जिहदे एक टर्म है तो एक है, जिहदे 2 है तो जानी कि उन्होंने की कहते हैं बाइनोमियल, जिहदे 3 उन्होंने की कहते हैं ट्राइनोमियल, जिहदे 4 वो की होंगे ने पॉलीनोमियल्स होंगे ने। तो आप पॉलीनोमियल बारे पढ़ चुके हैं कि पॉलीनोमियल की होंगी है। बेसिकली अपना चैप्टर है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे पढ़ना अपने। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पढ़ चुके हैं जो कि होंगी है आह वाली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे पढ़ना अपने चैप्टर के अगे आप सम भी करांगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पता भी जिहदे विच x की पावर कितनी होंदी है 2 होंदी है। तो पहले नंबर में मैंने a ले लिया x², दूसरे में मैंने b ले लिया x, तीसरे में मैंने c ले लिया। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गई। इट मीनस a b c ये की होंदे है कॉन्सटेंट होंदे हैं। की होंदे है कॉन्सटेंट, x की होंदा इहदे विच वेरीएबल होंदा। ठीक है, तो ये बारे आप अगे डिस्कस करांगे नैक्सट वीडियो दे विच। तो चैनल में सबसक्राइब करो। तो अगे आप नैक्सट वीडियो में सम सॉल्व करते हैं, सम ऑफ रूट ते प्रोडक्ट ऑफ रूट का। धन्यवाद।